पैर छुएंगे, पैर छुएंगे, पैर छुएंगे, पैर छुओ। ये हेलो हेलो हरि ओम सुमुखश्चाय एकदन्तात् कपिलो गजकैरिका लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणाढ्यो बालचन्द्रो गजानना वासुदेवाय नमामि और ये स्टेशन भी है, पहला सत्र की शुरुआत है और ये 4 बजे से आए Team members and our bright students. I am Kaushiki Singh, your host, and it gives me immense pleasure to welcome you all in Udan, an orientation and facilitation ceremony of 2025. Ladies and gentlemen, it's just a matter of fate that today we are here and we all have gathered during the auspicious occasion of Navratri. So wishing you all a very happy Navratri. And it's a pleasure and honor for us to have such a prestigious personality among us as our chief guest. Basically, his identity needs no introduction because his journey itself being an inspiration. A boy who born in 1984 in an Avasti family of Sitapur district went to Lucknow with a vision of becoming an MBBS doctor. But his fate took such a turn that a boy who didn't even know about UPSC returned in 2011 by becoming an IAS officer by securing all India rank 34. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to introduce again the District Magistrate of Pratapgarh, Mr. Shiv Sahai Avasti. Please join your hands together for him. With this, I would also like you all to introduce the pillars of this college. A woman who gave her life and is still giving her life to bring the life of this college. Ladies and gentlemen, please join your hands together for our principal, Dr. Nilima Srivastava ma'am. And a man who stood by a rock with her, who is the founder of this college and who gives the strength to this college, this faculty and these students. Please join hands together for our founder, Shri Arvind Srivastava sir. As I said, it's Navratri and we are currently worshipping Shakti. And this college, this institution is a living example of Shakti, women empowerment. And I want to dedicate few lines to you all. तेरा अस्तित्व तुझे पुकारता, चल बाधाओं को पार कर. तेरा अस्तित्व तुझे पुकारता, चल बाधाओं को पार कर. नाकाम कर दे तू हर मुश्किल, नाकाम कर दे तू हर मुश्किल. तू संघर्ष का श्रृंगार कर, तू संघर्ष का श्रृंगार कर. Starting our program, I would like to call my co-anchor Tripti Pandey. So please join your hands together for her. Thank you. Good afternoon, all of you. My name is Tripti Pandey, and today I am co-anchor in your program. Respected GM sir, welcome you all. Heartily welcome to the college. So without wasting our time, let's start our program. And first, I would like to request our chief guest and our dignitaries to do the lamp lighting and start the program. Please join hands together for all of them. भूता विश्ववे दाः स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु वृषदस्वा मरुता वृषणे मातरा शुभं यावानो विदधेसो जगमया अग्निजीवा मनवा सूर्यचक्षसो विष्णु देवा अवस्तागमनि भद्रं करणे विसूर्याम देवा भद्रं पश्ये माछवियर्जत्रा स्थिर रङ्गैस्तुष्ट्वा विप्र
हितं यदायु सतमिन्नु शरदोऽन्ति देवाय त्राणश्चक्राजरसं च शान्ति गुङ्ग शान्ति पृथिवी शान्ति रापाः शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वगुङ्ग शान्ति क्षमा शान्ति रेधि ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवति सर्वारिष्टि शान्तिर्भवति। आशीर्वाद लें जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती और ज्ञान बुद्धि का प्रकाश लाती हैं। With these lines, I would like to call Anushka and Trisha for Saraswati Vandana. Thank you Anushka, thank you Trisha. साईं के दर पर जो जाए उसका बड़ा भाग्य है। साईं के भजन को सुनने का कहाँ मिलता, सबको सौभाग्य है। With these lines, I would like to call Moshina, Srishti and Gauri to present a Sai Vandana. Please join your hands together for them. साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम के
वेलकमिंग। स्वागत, अभिनंदन। भारत में परंपरा है वासुदेव कुटुंबकम की। हम सब पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। आज हम सबके बीच एक ऐसी महान हस्ती आए हैं, उनके बारे में 4 लाइन मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि क्यों हम और आप सब इतने बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जग में रहकर बस काम किया, विघ्नों में रहकर बस काम किया। So please join us here again for our chief guest. Now I would like to call girls of Degree College to present a dance. Please come on the stage. manager sir and founder sir would garland for with these
Yes, and also applied that to him which was made by our students. आज का बैग जो है ये स्टूडेंट का है। भाग में बनवाया है। जल्दी लगाओ सबको यहाँ पर स्वागत में भाषण प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी। प्लीज उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साइंस समर्थ को प्रणाम कर मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे इन बच्चों को एक नेक इंसान बनाए और केवल मानव सेवा के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इनके अंदर भावना जागृत करें। आज बहुत ही शुभ अवसर है। हमारे 4 बच्चों ने पूरे जनपद का नाम गौरवान्वित किया है, रोशन किया है। उर्दू विभाग से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों लिया गया। होम साइंस से सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल और ग्रेजुएशन जो कि सबसे कठिन होता है मेडल लेना, क्योंकि जितने सब्जेक्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी में सब में उसको नंबर लेना होता है, तब जाकर के उसमें आता है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल अपने कॉलेज में मिला है। इसके लिए हम इन बच्चों का जोरदार आज बीएड 2025-27 के बैच का शुभारंभ है। हम इसके लिए उन सभी बच्चों का भी अभिनंदन करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो कॉलेज की मर्यादा और गरिमा है इसको वो बनाए रखेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस शुभ अवसर पर, इस इतने महत्वपूर्ण दिवस पर हमारे जिलाधिकारी महोदय जो कि प्रेरणा के स्वयं मूर्ति हैं, पिछले बार नवरात्र में ही आए थे और इस बार भी नवरात्र में ही आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं नहीं करते, क्योंकि अब वो हमारे अपने हो चुके हैं। उन्होंने पिछले बार जब आए थे तो कहा था कि इस महाविद्यालय के हर सुख दुख का मैं साक्षी रहूंगा और आज उसका पालन करते हुए वो हमारे बीच में है। हम उनका बारंबार पूरे साकेत परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। जिस समय जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए, यह महाविद्यालय संकट में था। जैसे मथुरा डूब रही थी तो मथुरा का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और पूरी मथुरा को उस बारिश से, उस महाबाढ़ से बचा लिया था। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी उसी प्रकार से हमारी रक्षा के लिए आए और हम उनका सदैव सदैव अभिनंदन करेंगे। साकेत परिवार इस बात के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और आज यहाँ के सामने से नाला बना जिससे कि यहाँ का पानी नहीं आया। नगर पालिका को यह एहसास हुआ, जो कि 4 साल से वो डिनाई कर रहे थे कि हमारा पानी ही नहीं है। उनको स्वयं प्रकृति ने उत्तर दे दिया कि इतनी बारिश के बावजूद नाला बन गया तो पानी नहीं आया। वो कहते थे साकेत का पानी है इसलिए पानी भरा हुआ है। उनको इस बात के कहने को वही नहीं होता, कहते नाला ही हमारा नहीं है। सब कुछ डिनाई कर दिए थे, लेकिन आज सब माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को इतना संरक्षण दिया है। हम उनके सदैव आभारी रहेंगे और सदैव जुड़े रहेंगे। क्योंकि आज समय का बहुत अभाव है, फिर भी आपने हमको समय दिया है। हम ज्यादा न बोलते हुए मैं संचालक से कहूंगा कि कार्यक्रम को जल्दी आगे बढ़ाएं और क्योंकि जिलाधिकारी महोदय बच्चों से सीधा संवाद करना चाहते हैं, हम उनको इसके लिए पर्याप्त समय का बहुत अभाव है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा संचालक से कि बहुत शीघ्रता से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि सर ने अभी आप लोग को बताया
कि हमारे 4 विद्यार्थी इसी कॉलेज की 4 लड़कियां जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे या कह सकते हैं स्टेट लेवल पे टॉप किया है, आप सबके लिए, हम सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। और हम सब, मैं वो हर एक नारी शक्ति और विमेन एम्पावरमेंट को साथ लेके कुछ लाइनें आप सबके लिए बोलना चाहूंगी। धारण करो रूप काली का, अब स्वयं युद्ध करना होगा। धारण करो रूप काली का, अब स्वयं युद्ध करना होगा। सेना भी तुम हो, नायक भी तुम, सेना भी तुम हो, नायक भी तुम, सारथी भी स्वयं ही बनना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो नारी है, अगर वो शक्ति का रूप है तो वही प्रेम और शांति का भी रूप है। और जयशंकर प्रसाद जी ने इस बात को बहुत ही बखूबी से कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। Now, I would like to call Girls of Degree College to present a dance. Please come on the stage. ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बांध मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तुझसे कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। Wow, wonderful performance. What a beautiful performance presented by these girls. Please again join your hands together for them. सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। With these lines I request
our chief guest to please come on the podium and facilitate us with few words. Please join hands together for our chief guest. पहले वितरण करा दो, पुरस्कार वितरण करा दो। पहले सर को हम लोग जो है And these lines are especially for Nasreen Banu, Samira Khatun, Kiran Sharma and Aditi Tripathi. First we have Nasreen Banu, gold medalist in MA Urdu, secured 86.46%. Please join hands together for her. Second we have Samira Khatun, silver medal in MA Urdu with a percentage of 84.90. Third we have Kiran Sharma, bronze medal in MA Home Science with a percentage of 82.96. Then we have Aditi Tripathi, bronze medal in BA final year with percentage of 81.14. I request you all that please again join hands together for these girls. Now I request our chief guest, founder sir, manager sir, principal ma'am and to all our dignitaries to present the award and certificate to these girls. Sorry, I don't heard the sound of your clapping. Please join hands together again. And with this also, we have few teachers whom we need to facilitate. And the first one, Dr. Anita Pandey ma'am, Dr. Prabha Sharma ma'am, Shri Bahar Lata Shrivastava ma'am, Dr. Jyoti Singh ma'am, Ajmat Ali sir and Rahees Ahmad sir. Please join hands together for our teachers. मीरा खातून, सिल्वर मेडल। किरण शर्मा, ब्रॉन्ज मेडल। आदित्य त्रिपाठी, बीए में लाई है। अच्छा, अब टीचर्स में आ जाए। डॉक्टर अनीता पांडे, डॉक्टर प्रभा शर्मा, होम साइंस। Clapping is a way to pay respect to these members. Please again join hands together and keep clapping. डॉक्टर उपहार लता श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्योति सिंह, मिस्टर अजमत अली, ये 6 साल से इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। 6 साल से कंटिन्यूअस गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ये रईस अहमद, अनिता, थैंक यू। ये लगा दीजिए। प्रातः स्मरणीय महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज यहाँ साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज के इस कार्यक्रम में
आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज के संस्थापक श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, यहाँ की प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव जी, श्री हर्षित श्रीवास्तव डायरेक्टर साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डॉक्टर उपहार लता श्रीवास्तव जी विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान, डॉक्टर अवधेश शर्मा HOD BA डिपार्टमेंट, डॉक्टर अनीता पांडे वाइस प्रिंसिपल साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं और उपस्थित सभी प्यारे छात्राएं, मातृशक्ति, सर्वप्रथम इस समय शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। इस शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से कि वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मुझे याद है कि पिछली बार भी यहाँ नवरात्र में ही आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। आज के लिए मैंने सोचा कि बेहतर ये होगा कि हम लोगों से इंटरेक्ट करें। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई किसी का सुझाव हो, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश को 2047 में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उसमें सभी प्रबुद्ध जनों से बहुत सारे सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये ओपन फोरम है आप सभी के लिए, चाहे यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं हों, चाहे यहाँ के छात्र और छात्राएं हों। अगर किसी को अपने करियर के बारे में कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो उसके बारे में पूछिए। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इशू है, अगर उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करिए। कोई भी कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, साहित्य से संबंधित प्रश्न है तो वो पूछिए। और अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपको शेयर करना है तो उसके लिए भी ये ओपन फोरम है। मेरे पास अभी 15 मिनट के आसपास समय रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को सुनूं और उसके आधार पर एक प्रशासक के तौर पे कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे प्रेरणा लें। आज मेरा उद्देश्य यह है। धन्यवाद। आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं होंगे भाई, बताएंगे। कौशिकी प्रश्न नहीं तो उत्तर बताइए फिर। समय कम है। कौशिकी कोई अपना कोई संस्मरण सुनाना चाहे, कोई अपने जीवन के बारे में बताना चाहे, किसी ने विजन क्या देखा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को 2047 में एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने का। उसमें आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका उस विजन को लेकर के क्या सोचना है, आप भारत को 2047 में कहां देखना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश को 2047 में कहां देखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हम 2047 तक ओवरकम कर लेंगे। आपका विजन अपने प्रदेश को लेकर के, अपने जनपद को लेकर के, अपने देश के बारे में क्या है, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। अगेन गुड आफ्टरनून सर। जैसा आपने कहा कि अगर हमें कोई, माय नेम इज कौशिकी सिंह एंड आई वाज द स्टूडेंट ऑफ PX Academy हियर इन साकेत डिग्री कॉलेज। तो जैसा कि आपने कहा कि हमें अगर कोई क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हम आपसे पूछ सकते हैं। और आपने बस स्टार्टिंग में कहा कि हमारा एक विजन है इस देश का 2047 तक उत्तर प्रदेश को नहीं, इंडिया को इकोनॉमी के लेवल में बहुत हाई लेके जाना। सर लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होगी जब एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग होगा, और एम्प्लॉयमेंट तभी स्ट्रांग होता है जब एजुकेशन स्ट्रांग होती है। सर हमारा जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके चलूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का अगर हम सर्वे करें तो जो लिटरेसी रेट होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम एजुकेशन रेट का सर्वे करें, जैसे अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो हमारा लिटरेसी रेट तो बहुत हाई है, मोर देन
30%, लेकिन जो एजुकेशन रेट है वो सिर्फ 2% इंडियंस का है, ये सर्वे के अकॉर्डिंग। तो हम, क्योंकि हम सब एक एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम एजुकेशन में ऐसा क्या वर्क करें कि हम सिर्फ लोगों को लिटरेट ही नहीं, उन्हें एजुकेट भी करना है। थैंक यू। एजुकेशन रेट से आपका क्या तात्पर्य है? सर, एजुकेशन से मेरा मतलब ये है कि जो सिर्फ साक्षर नहीं हो, शिक्षित भी हो, मतलब जिन्हें सिर्फ पढ़ना लिखना ही ना आए, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का अर्थ भी समझ में आए, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये बच्ची ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और अगर आप देखें आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसमें वही देश आगे बढ़ पाए हैं जिन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे वर्कआउट किया है। साउथ कोरिया और इंडिया और सिंगापुर तीनों लगभग एक ही समय में आज़ाद हुए थे। 1950 के आसपास तीनों की जो पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा जीडीपी थी वो लगभग बराबर थी। आज की डेट में सिंगापुर देखिए कहाँ पे है, साउथ कोरिया कहाँ पे है, और हम कहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वजहें रही जिसकी वजह से हम लोग जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाए। तो आपकी डायग्नोसिस एकदम ठीक है। हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उन पे जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम हम लोग नहीं कर पाए, और उसी का नतीजा है कि आज भी हम एक मिड लेवल इनकम कंट्रीज में से ही आते हैं। वी आर स्टिल एस्पायरिंग टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। तो आपकी डायग्नोसिस एकदम सही है। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसके नागरिक आगे बढ़ना ना चाहते, और उसके नागरिक आगे बढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि उनको शिक्षा के माध्यम से, अच्छी स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से, पोषण, सैनिटेशन और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको उपलब्ध करा करके पहले एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रस्तुत किया जाए जिसमें व्यक्ति अपनी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी उसके अंदर प्रतिभा है, उसका सर्वोच्च प्रदर्शन कर सके। तो निस्संदेह आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अगर हमें अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्ट करना होगा वो है एजुकेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों के विज़न में ही जो शिक्षा है वो सर्वोच्च स्तर पे है। शिक्षा के संबंध में आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। बहुत सारे नए नए इनोवेशंस शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। शिक्षा को इंडस्ट्री सेक्टर से भी जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि आज की डेट में हम लोग बहुत सारे न केवल अकुशल बल्कि अर्धकुशल और कुशल मैन पावर को भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि जो हमारी यूएसपी है वो हमारी जनसंख्या है, जिसको पहले एक बर्डन के तौर पे लिया जाता था, अब वही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, और उसको हम लोग किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में प्रयोग कर सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। जितनी योजनाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं, मेरा एक सुझाव था कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं इसको बच्चों के जोड़ा जाए। होता क्या है कि योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, और इनको पहुंचाने के लिए बच्चे हमारे सबसे अच्छे साधन हैं। क्योंकि ये हमने देखा, एक बार हमने मंगला योजना के लिए अपने एनएसएस के बच्चों को लगाया, और मैंने कम से कम 2-3 गाँव को बिल्कुल सेपरेट कर दिया।
तो ऐसा अगर हम लोग किया जाए कि हम लोग अपनी सारी योजनाओं को सारे कार्यक्रम कल्याण अधिकारियों को ये कहा जाए कि कॉलेजों से जुड़े और NSS की तरफ से ये हो जाए कि NSS के बच्चे इसको घर घर पहुँचाएं। तो क्या होगा कि हम अपने सारी योजनाओं को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा रहे, क्योंकि है तो सब उसी समाज से जुड़े हुए लोग, तो पहुँचाना बड़ा आसान है। इससे अच्छा संवाहक होने का इस दिशा में कार्यवाही होना चाहिए। थैंक यू। श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक हम सारी स्कीम्स में जन सहभागिता नहीं होगी तब तक वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगी, और सरकार इस बात से बखूबी सहमत भी है। अभी जो हादी हॉल यानी तुलसी सदन है, वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाएं। उसमें गवर्नमेंट की जितनी भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उनके बारे में प्रदर्शनी है। ये आगामी 1 सप्ताह तक रहेगी। वहाँ पे जिला सूचना अधिकारी से आप लोग समन्वय स्थापित करके वहाँ जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अभी जैसे कौशिकी की बात की, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, अभी रिसेंट जो इंडिया यूएस के रिलेशन जब टेंस हुए तो एक ग्रीन पे बड़ा डिस्कशन हुआ। अब उस पर दो पक्ष, एक बड़े हाईली कॉन्ट्रास्ट पक्ष हैं जो रिजर्वेशन टॉपिक पे डिस्कशन होता है। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि जो जाते हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनका दो ही रीज़न, एक रेटिविज्म पे बात आती है, दूसरी बात आती है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। तो इस पर क्या आपकी? देखिए, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो होता है राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा फंडामेंटल पिलर है जिस पे ही किसी भी देश की विदेश नीति बनती है। आप जान रहे हैं कि विभिन्न कारणों से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो आज की डेट में चेंज हो रही है। जो पावर सेंटर है उसकी धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है। कई जगहों पे युद्ध की परिस्थितियां विद्यमान हैं, कई जगहों पे बहुत सारी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ हैं, इंस्टेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो प्रभावित हो रही है। उस बदलती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे ध्यान में रखता है, इसके लिए सारे देश अपनी अपनी नीतियों को लेकर के आते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या टैरिफ बढ़ाया है वो क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन परिस्थितियों से निपटने में हमारी अपनी तैयारी क्या है और क्या हम उसके लिए सक्षम हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश में एक सक्षम नेतृत्व है जो कि कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही डेलिब्रेशंस के बाद राष्ट्र हित में ही करता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि बहुत सारे निर्णय बहुत सारे देश लेते हैं तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बट जैसे ही वो तात्कालिक परिस्थितियाँ वैनिश हो जाती हैं, नहीं होती हैं, तो उनकी जो पुरानी पॉलिसी है वही फिर से कंटिन्यू होने लगती है। मेरा ये मानना है कि इस समय वैश्विक राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें कुछ टर्बुलेंसेस हैं, बट धीरे धीरे परिस्थितियों के बदलने के बाद से चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सिंपल सी उदाहरण देना चाहता हूँ डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन के निर्णय को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन हुआ है वो केवल और केवल डीमोनेटाइजेशन की देन है। पूरी दुनिया में एक सिंगल एग्जांपल नहीं मिलेगा जहाँ पे ठेले, खोपचे और रेहड़ी वाले लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन नॉट इन यूएस ऑल्सो। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में आप जाएंगे आपको डेटा का इतना डिजिटलाइजेशन नहीं मिलेगा जितना इंडिया में हुआ। ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन वेबिनार, सेमिनार, ये सब पास्ट की चीज़ें थी, कोई इस पर सोचता भी नहीं था।
आज की डेट में जो डेटा और जो डेटा क्रांति इस देश में हुई है उसका नतीजा है कि डिजिटलाइजेशन की जो पेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है एंड यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर दिस काइंड ऑफ पेस इन एंटायर वर्ल्ड। हम लोग बहुत सारी जो क्रांतियाँ थी जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन था, उसमें पीछे रह गए। लेकिन मुझे खुशी है कि जिसको ये चौथी बिग रेवोल्यूशन माना जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, उसमें हम लोग पूरी दुनिया में न केवल कदम ताल मिला के आगे बढ़ रहे हैं बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसका लाभ आम जनमानस को भी उसी तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आपदा के साथ अवसर भी आता है। ये नेतृत्व और जनमानस तय करता है कि उस आपदा को अवसर में कैसे बदलना है। कोविड के दौरान आप देखिए, कोविड के दौरान जो भी परिस्थितियां विद्यमान हुई, उसके बाद जिस तरीके से हमने संघर्ष करके हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़े वो दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड। आपको केवल एक ऐप डाउनलोड करना होता था उस समय और उसी से आपका पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पता चल जाता। आपकी जो रिपोर्ट कोविड की थी वो ऑनलाइन आती थी, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता था, केवल मोबाइल में दिखाइए जाइए। यूएस में भी वैक्सीनेशन होने के बाद हाथ से कागज भर करके और सर्टिफिकेट दिया जाता था। वो जो लोग यहाँ आए और ये चीज़ें देखी तो वो हैरान रह गए। तो इस देश ने पहले भी ऐसा करके दिखाया है और हमारे अंदर वो पूरा पोटेंशियल है कि हम आगे भी दुनिया को वो रास्ता दिखाने की क्षमता है। यूपीएससी की कोई तैयारी करना चाहता हो तो पूछ सकता है। एक माइक आगे आ जाओ। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है, मैं बीए की छात्रा हूँ और अभी इस साल ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में कहाँ कितनी और कैसे पढ़ाई की जाती है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है कि सिलेबस तो है ही ऑनलाइन, सिलेबस तो सभी को मिल जाता है, बट मैं आपसे पर्सनली जानना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में कहाँ तक, किस लेवल तक पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो सब बोलते हैं हाँ सिलेबस है, और जब हम सुनते हैं तो ये देखते हैं कि IAS तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं और बहुत बड़ी चीज़ है, इसका सिलेबस का कोई और छोर ही नहीं है। तो ये हम सुनते हैं तो मुझे अंदर से ये लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे होगा कैसे नहीं। तो आप मुझे बताइए कि कैसे हम इसको थोड़ा ईजिएस्ट वे में, किस वे में, मतलब मेरा मार्गदर्शन। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि करियर में चुनाव किस आधार पे करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि each and every human being is a unique individual. He or she has his or her own potential, and you have all the conditions to fulfill your dreams, your goals, whatever you desired in life. Just follow your passion, just follow your dreams. So this should be very clear in your mind that what kind of life that you want to have for yourself. The second question would be, have you that kind of a potential to realize it? Are you going to be successful in order to achieve your goal? So that should be the second question. And if first and second question's answer is yes, then it is only your strategy, it is only your hard work, it is only your dedication, passion, which really should drive you, and you will definitely going to achieve your goal in your life. तो पहला तो ये है कि अपनी क्षमताओं का असेसमेंट करिए कि आप में क्या बनने की क्षमता है और फिर आप क्या बनना चाहते हैं।
ये दोनों चीज़ें अगर डिसाइड हो गई, उसके बाद फिर बहुत चीज़ें डिसाइड होना बंद हो जाता है। आपको हर समय अपने दिमाग में बस केवल अपने गोल को देखना है कि हमें ये करना है। यू शुड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ फॉर अ डेली बेसिस दैट वन डे you want to achieve this thing in life. That is the most important aspect in order to achieve your goals in your life. तो पहली बात तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है IAS बनने की, और आपको लगता है कि IAS आपके लिए सबसे अच्छा करियर हो सकता है, then you should definitely try for that. अब उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि IAS की तैयारी कैसे करें। हम लोग जब 15 साल पहले आए थे, 2005 से मैंने 6 से तैयारी शुरू की थी मुझे याद है। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। आज की डेट में आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपको ये बहुत बड़ा एक मिसनॉमर है कि सिलेबस का कोई और छोर नहीं था। IAS का जैसे ही एडवर्टीजमेंट आता है उसमें पूरा सिलेबस लिखा होता है। 90% बच्चे यही गलती करते हैं जो आपने कहा। वो सिलेबस बिना देखे जो किताबें लोग प्रिस्क्राइब करते हैं IAS की पढ़ाई के लिए, सीधे उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अगर IAS बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए, अपना सिलेबस देखिए कि क्या है और वही पढ़िए जो सिलेबस में है। बाकी चीज़ें पढ़ने का मौका आपको बाद में मिलेगा। अगर कोई ऐसा लिटरेचर है जिससे आप मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो, आपको लगता है कि आपकी जो 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 प्रतिभा है, जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, तो आप वो भी पढ़िए। लेकिन मेरा ये मानना है कि उतना ही पढ़िए और वही पढ़िए जो सिलेबस में है। बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आज की डेट में IAS की तैयारी करना, क्योंकि लगभग 8 से 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 4 से 5 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, लगभग 15-16 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं, उसके बाद लगभग 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, उसमें से 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 100-150 IAS होते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इट इज़ नॉट ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ये इस तरीके से नहीं कि आपके BA में 85% मार्क्स आ गए, MA में 85% मार्क्स आ गए। नो, आपको आपस में ही कॉम्पीट करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो अप्रोच होती है वो एकेडमिक एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग होती है, और उस अप्रोच के साथ जो तैयारी करता है वही सक्सेसफुल होता है। मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत ही एवरेज है, 62% के आसपास ही मेरे मार्क्स आए सर। बट जो मेरा कॉम्पिटिटिव करियर रहा उसमें मैंने बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच के साथ और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की, और जिसका रिजल्ट हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक के साथ हुआ और मैं IAS बन पाया। और IAS में भी उसमें भी जो 150 बनते हैं उसमें होम कैडर मिलने के लिए भी अच्छी रैंक चाहिए। अपने प्रदेश में नहीं तो तमिलनाडु और केरला में आपको जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया IAS बनना है तो निस्संदेह एक बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है, लेकिन किसी भी बैकग्राउंड के लोग, किसी भी एकेडमिक विधा के लोग, किसी भी एज ग्रुप के लोग, किसी भी इनकम ग्रुप के लोग, किसी भी रीजन, किसी भी भाषा के लोग सब सेलेक्ट होते हैं। मेरा एक बैचमेट है, वो तमिलनाडु से तमिल मीडियम में एग्ज़ाम लिख करके प्रॉपर IAS बना है, तमिल में एग्ज़ाम लिखा उसने। तो उदाहरण हर जगह आपको मिल जाएंगे। मेरा एक बैचमेट है जिसके माँ बाप नहीं थे, ऑर्फनेज में पढ़ा, ऑर्फनेज में रहने के बाद भी उसने पढ़ाई की और IAS बना, आज की डेट में नागालैंड कैडर में। तो उदाहरण हर तरीके के मिलते हैं। बस केवल आप में वो इच्छा शक्ति है अथवा नहीं, आप उतना परिश्रम कर पा रहे हैं कि नहीं, सैक्रिफाइस उतना कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, लेकिन उनसे दूर रहते हुए आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आँख अगर दिखाई पड़ रही है ना, then I can guarantee you will be definitely successful in your endeavor to become an IAS officer, or whatever you want to be in your life, you will definitely achieve that.
That is my opinion about career and about person's ability to achieve anything. Thank you. मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को ये बताइए कि मेरे यहाँ जो बच्चे इंटर करके जो बीए में आते हैं ग्रेजुएशन में, वो कहते हैं मैं इलाहाबाद में कोचिंग कर रही हूँ, सेकेंड ईयर पहुँचते हैं मैं इलाहाबाद में कोचिंग कर रही हूँ, मुझे IAS बनना है। इस बीए को वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद ही अगर इस दिशा में जाएगा तो ज़्यादा सही होगा कि वो बीए पार्ट 1 प्रीवियस से ही अपने IAS की तैयारी शुरू कर दें। इन बच्चों को ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और ये बहुत सारे लोगों के लिए डिलेमा है। हालांकि पहले और अब में मेरी ओपिनियन इस बारे में चेंज हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि इंटरमीडिएट करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के साथ आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप किस एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, मेरा मानना है 11वीं और 12वीं की क्लास में ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आगे के लिए बहुत हेल्प आ जाती है। यूपीएससी के लिए आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है इंटरमीडिएट यानी 12वीं में डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको करना है। अब आपका सेकेंड प्रश्न आता है कि बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये एक गलत तरीका है एग्ज़ाम को समझने का। एक सब्जेक्ट अभी भी वहाँ पे आता है और अगर आप बीए कर रहे हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको जनरल स्टडीज़ में मदद करते हैं। अगर आपने बीए का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया उस सब्जेक्ट का तो आपको अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहता हूँ। दिक्कत ये है कि आजकल के बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं हैं, गाइड्स पढ़ते हैं या वो जो इतने पतले वाले आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरीज, हाँ, वो पढ़ के पास हो जाते हैं। तो ये डुअलिटी जो है आपकी एकेडमिक करियर और कोचिंग वाली ना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सदैव जान लीजिए कि IAS का एग्ज़ाम केवल आपका केवल नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, वो 3 स्टेप में हर चीज़ वो चेक कर लेता है कि आप में कुशल प्रशासक बनने की क्षमता है या नहीं। और मैं फिर कहूँगा कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि खाली कोचिंग कर लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो कोचिंग में तो 3-4 लाख लोग पढ़ते हैं हर साल, सेलेक्ट होते हैं केवल 1000-1200 लोग। अभी भी मेरा मानना है कि आपको ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड स्थापित करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। उसके बाद अपने आप को दीन दुनिया से वाकिफ करना चाहिए। You should be completely aware of your surroundings and your environment. What is going on all around at national level, at international level? What is going with the economy, with the society, with the polity, with the international affairs? उसके लिए आपको एक अच्छा अखबार और एक अच्छी मैगजीन बीए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। बेसिक टेक्स्ट बुक से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप NCERT की किताबें जो भी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक की, वो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन अभी कितना 18-19 ईयर्स में लोग कर लेते होंगे, 18। उसके बाद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा मौका बैठने का 21 साल की एज में, ठीक। तो मेरा मानना है कि वो जो 3 साल 2.5 साल आपको मिलेगा, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और उसमें आपको जो भी गाइड बुक, नोट्स बुक, कोचिंग जो भी पढ़ना है वो कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं कोचिंग पे। कोचिंग अगर आपके 2 लक्ष्य कोचिंग के साथ हो रहे हैं
तब तो कोचिंग रिलेवेंट है, अदरवाइज कोचिंग इज नॉट गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन एट ऑल। फर्स्ट, पहला ये है कि जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उतना आप डेली घर पे आके तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर आप कर पा रहे हैं तो कोचिंग का रिलेवेंस है, अदरवाइज 50% रिलेवेंस गया। सेकेंड, कोचिंग से आपको एक लाइक माइंडेड लोगों की कंपनी मिल जाती है जो आपके जैसे नेचर के हैं, आपकी जैसी पर्सनालिटी है, आपके जैसा उनका IQ लेवल है, आपके जैसा पढ़ाई का स्तर है। अगर वो 4, 5, 10 लोगों का एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप ने आपस में चीज़ें डिस्कस करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, नोट्स शेयर करने शुरू किए, आंसर राइटिंग शुरू किया, इंटरव्यू लेना शुरू किया, ग्रुप डिस्कशन शुरू किया, पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, अगर ये ग्रुप आपका बन गया और इसमें आपने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी तो 50% कोचिंग यहाँ पे रिलेवेंट हो जाती है। बट मेरा अपना दावा है कि 90% बच्चे ये दोनों ही काम नहीं कर पाते, तो कोचिंग पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो जाती है। इसलिए कोचिंग जाने से ये 2 लाभ अगर आप ले पा रहे हो तब तो कोचिंग जाने का फ़ायदा है, नहीं तो मैं फिर बताना चाहूँगा कोचिंग में ज़्यादातर वही लोग पढ़ाते हैं जो इस एग्ज़ाम में गलतियाँ करके फेल हो चुके हैं। Anything else? Anyone else? हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं कैसे शुरू करना। Point is that कि when should we call it a day? When it is too late? ये कब पता चल जाए कि आप No, never too late. जब जागो तभी सवेरा, कभी से भी शुरू कर सकते हैं। हर तरह के एग्जाम्पल है, आप यकीन नहीं करेंगे। जब मैं DM झांसी था तो मेरी एक लेडी ऑफिसर IAS ट्रेनिंग बन करके आई। वो तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, वहाँ उसने तैयारी शुरू की। वो कभी कोचिंग नहीं गई, इवन रामेश्वरम के बाहर भी वो नहीं गई, और उसका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया IAS। ठीक, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करते थे। उनके पास अचानक से उनको दिमाग में आया कि नहीं मुझे तो IPS बनना है। एक अटेम्प्ट बचा था, केवल लास्ट अटेम्प्ट, एज निकल चुकी थी, बस 1 साल बचा था। उस बंदे ने तैयारी किया और लास्ट अटेम्प्ट में IPS में सिलेक्शन हो गया। UP कार्डर है, यहीं पे अभी SP है किसी जिले में। ठीक, उदाहरणों की कमी नहीं है, मैं फिर बता। बट ये है कि एक जनरल ट्रेंड ये है कि इंटरमीडिएट के बाद आपको तैयारी के बारे में सोचना चाहिए और तैयारी के बारे में अपने आप को तैयार करना चाहिए। ठीक, और फिर वो जो आपके पास ग्रेजुएशन के बाद 2-2.5 साल बचते हैं उसमें मन लगा के पढ़िए। मेरा दावा है कि आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी बच्चे के पास कोई प्रश्न है? राहुल ये लीजिए। हाँ सर, मैं BA डिपार्टमेंट का हूँ। ये ले लो। हेलो सर, मैं राहुल मिश्रा। सर, मेरी एक प्रश्न है कि जैसे होता है मेटाकॉग्निशन, अपनी सोच के बारे में सोचना कि हम सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अधिकतर बच्चों से, जो भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे विद्यालय में, तो उनको मैं जब रियलाइज़ करता हूँ कि वो ये महसूस नहीं कर पाते कि हमें जो सोच रहे हैं, हमें जिस तैयारी में जाना है, उस चीज़ को वो महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसी क्या चीज़ कमियाँ रह जाती हैं लोगों के अंदर कि उनको कोई एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि वो जो सोच रहे हैं कि हमको BA करना है या हम तैयारी कर लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, मतलब वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, जैसे कहते चित्त शांत नहीं रहता। अपनी सोच के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, और वो चीज़ ऐसा क्यों होता है, इन बच्चों को बताने की कृपा करें। देखिए, इस विषय का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट जो भी मैं समझ पा रहा हूँ, इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली ही दोषी है। हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में कितने बार इस विषय पे डिस्कस करते हैं और बच्चों का एक प्रोफाइल बना के रखते हैं कि उसमें ये पोटेंशियल है,
मुझे लगता है कि कोई भी टीचर ये काम नहीं करता है कि अपने बच्चों की प्रोफाइलिंग करता हो, यहाँ होता है उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स क्या हैं, उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसमें उनका रुझान है, उनका पोटेंशियल किस में जाने का है। तो एक बच्चों की ओवरऑल प्रोफाइलिंग हो और फिर उनसे वन टू वन इंटरेक्ट किया जाए, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। तो एक ओवरऑल जो एक माहौल है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वो माहौल हम लोगों को देना चाहिए बच्चों को। घरों में भी लगभग ये संवाद समाप्त हो चुका है आज की डेट में। लोग केवल अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं बस। घरों में मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक डिनर सारे लोग साथ में नहीं करेंगे और डिनर के बाद आधे घंटे एक साथ बैठ के अपने सुख दुख के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये जो आप बता रहे हैं ये समस्याएं आएंगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं संडे को सुबह वाले सेशन में किसी से नहीं मिलता हूँ। मैं केवल अपने बच्चों का होमवर्क कराता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। रोज़ समय नहीं मिलता है, बट संडे को मेरा बिल्कुल थंब रूल है कि मैं ये काम करता हूँ। तो आप अपने घर में भी एक संवाद का माहौल बनाएं, अपने विद्यालय परिसर में भी एक संवाद का माहौल बनाएं, क्योंकि वो संवाद ही है जिसके जरिए विचारों का आदान प्रदान होता है, नए विचार निकल के आते हैं और एक अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजन उसमें दिए जाते हैं। दूसरा, आपने बीएड के बारे में बताया। मेरा मानना है जितने भी बच्चे बीएड के स्टूडेंट हैं उनको बेसिक फिलॉसफी का नॉलेज जरूर होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, खास तौर से जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो है फिलॉसफी। अगर आप फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग ना तो समझ पाएंगे और ना वो आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट होगा। मैंने फिलॉसफी को उसी ढंग से पढ़ा और मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे आज भी आईएएस का क्वेश्चन पेपर दे दो फिलॉसफी मेंस का, मैं 5 तो छोड़ दो 8 के 8 क्वेश्चन अभी भी किसी भी समय लिख सकता हूं। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन फिलॉसफी आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ना चाहिए। ये जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं इनकी, ये कैसे जनरेट होते हैं, इनके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी इंटरेक्शन आप लोगों से हो गया। मैं पुनः आप सभी को आपके अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आपकी योग्यता और क्षमता में। हम लोग तो अपने जीवन के मध्यकाल में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। 2047 का जो बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप लोग अपने पूर्ण निष्ठा और पूरी लगन के साथ इसमें लगेंगे। व्यक्तिगत जीवन में उन्नयन की ओर प्रयास करिए, सामुदायिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी उन्नयन का प्रयास करिए। टाइम वेस्ट मत करिए, खुद को अनुशासित करिए और एक लक्ष्य को केंद्र बना करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर के इंटरेक्शन ने हम सब की बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व किया, बहुत सारे डाउट्स। आई होप जो हम सबके मन में थे, कुछ ऐसे डाउट्स भी थे जो सिर्फ किसी एक के नहीं थे, बहुत सारे लोगों के थे और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसको पूछा तो बाकी सब लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो गए। हमने अभी अवार्ड सेरेमनी की है। हमने 4 बच्चों को अवार्ड दिया जिन्होंने अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, लेकिन सच तो ये है कि उनमें कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। और उन सभी लोगों के लिए, हम आप जैसे लोगों के लिए सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहूंगी, कुछ तो शेष है हम में, अभी हारे नहीं हैं हम। कुछ तो शेष है हम में, अभी हारे नहीं हैं हम। चमकेंगे तो सूर्य की तरह, चमकेंगे तो सूर्य की तरह, क्योंकि तारे नहीं हैं हम। और इसी के साथ मैं आभार, इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए अपने प्रिंसिपल मैम को आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। थैंक यू कौशिकी यहाँ बुलाने के लिए।
परम आदरणीय हमारे डिस्ट्रिक्ट के सर्वोपरि डीएम साहब, आज हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि आप हमारे कॉलेज में आए और इस नवरात्रि के पर्व पर हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे और भी ऊंचाइयों तक ले जाए, ये हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। सच मानिए तो आप लोग के कॉलेज में आने से ही 10% हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं। उनके अंदर एक फीलिंग्स आती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और हम लोग के हमेशा से ये कामना रहती है कि मेरे बच्चे केवल पढ़े ही ना, संस्कारी बने। और वो संस्कार हमारे बच्चों को आपसे, आपके आने से दिखाई पड़ता है। मैं पुनः अपने कॉलेज की सब टीचर्स, सब बच्चों, सबकी तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं और आभार भी देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे बच्चों को समय समय पर आशीर्वाद देते रहिएगा, उन्हें याद रखिएगा, हमारे कॉलेज को याद रखिएगा। धन्यवाद। Thank you.